نظام چل سکے. اور اللہ نے تو بحث ہی ختم کر دی. اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی, یہ فضیلت میں نے دی ہے بندوں کو تم پر کہ تم ان کی بات مانو. تو پھر مردوں کو حاکم مانے. حاکم مراد دنیا والا حاکم نہیں, گھر کا امیر اور بڑا مانے, کیونکہ انہیں یہ فضیلت اللہ نے دی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اس لیے بھی کو تم پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جی. آپ جو کپڑے پہنتی ہیں کہاں سے آتے ہیں, جو کھانا کھاتی ہیں کہاں سے آتا ہے, جو اتنے پیارے گھر ہیں کہاں سے آئے ہیں, ماں باپ نے تو نہیں دیے. گھروں میں اے سی چل رہے ہیں, اچھا خود جا کے وہ گرمیوں میں کام کرتے ہیں نا. اور ابھی گرمیاں شروع ہوئی ہیں, اگر آپ 1-2 ماہ بعد میرے میاں کو کبھی ملے تو آپ دیکھیں کہ ان کے بازو کا چہرہ جھلس جاتا ہے. میرا تو نہیں جھلستا, میں تو آرام سے گھر پہ بیٹھی رہتی ہوں. تو کون کس کی وجہ سے سب کچھ میسر ہے ہمیں؟ شوہروں کی وجہ سے. وہ خود جاتے ہیں, گرمی سہتے ہیں, سردی سہتے ہیں, بارش ہو رہی ہے, پانی کھڑا ہوا ہے, اچھا جوتے تھیلے میں ڈالے, پینٹ ٹونگی اور چلے گئے. کیوں چھٹی نہیں کر سکتے؟ ہم آرام سے گھر میں بیٹھی ہوئی, سب ان کی برکتوں سے ہے. بھائی آپ نے تو جاب کی ہے نا, اور ایک چیز یہ ہے کہ جاب آپ نے کی اپنی چوائس سے. آپ کے میاں نے یہ نہیں کہا کہ تم کماؤ گی تو کھاؤ. تو کئی بچیاں آج کل جاب کرتی ہیں, اپنی چوائس سے کرتی ہیں, ان کو شوہروں نے نہیں کہا. اگر شوہر یہ کہے کہ میں تیرا ذمہ نہیں اٹھاؤں گا, پھر وہ مجرم ہے. تو اب اگر عورتیں اپنی چوائس سے کرتی ہیں تو پھر اس کا ذمہ شوہروں پر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو ڈیوٹیز بانٹ دی نا. مردوں کو کہا جاؤ کماؤ لے کر آؤ, اور عورتوں کو کہا گھر میں بیٹھو, گھر سنبھالو, بچوں کی تربیت کرو, گھر والوں کا خیال کرو, تاکہ سب کچھ اسموتھ چلتا رہے. تو الحمدللہ یہ سسٹم بڑا اچھا ہے. اب جیسے جیسے خواتین زیادہ جابز میں آ رہی ہیں, بچوں کی پرورش, تربیت, بزرگوں کا سنبھالنا, یہ بھی تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کا سسٹم سب سے اچھا, اسے قبول کرو. دوسری بات یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی, پہلے آپ سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں, آگے انشاءاللہ نور میں بھی پڑھیں گے. دیکھیں کوئی کام نہیں چل سکتا اگر میں اور آپ ایک سٹیٹس پر آ جائیں. دنیا کے سٹیٹس کی بات کر رہی ہوں. اللہ کے ہاں بہتر وہ ہے من اتقاکم, جو زیادہ پرہیزگار ہے, وہ اللہ کو پتہ ہے. دنیا کے اعتبار سے میں ٹیچر ہوں, آپ اسٹوڈنٹ ہے, میں کوئی بات کہتی ہوں آپ مانتے ہیں. اگر آپ کہیں نہیں, جو یعنی کہ ہم ایک ایج کے لوگ ہیں, ہم تو نہیں تمہاری بات مانیں گے, تو کلاس چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. تو ایک کو لیڈر بنانا پڑتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 لوگ ہوں تو ایک امیر بنے گا. 2 لوگ کسی کام کے لیے اکٹھے ہوں تو ان میں سے ایک کو امیر بناؤ. تو گھروں میں آپ دیکھیں, گھر میں آپ کسی ملازم کو بلائیں, کسی کام والے کو بلائیں, پلمبر وغیرہ کو, 2 منٹوں میں کام ہو جاتا ہے. اچھا وہی کام آپ کہہ دیں اپنے بیٹے اور شوہر پر, دونوں باپ بیٹے کھڑے ہو جائیں گھر میں, کیوں نہیں ہوتا؟ باپ کہتا ہے میری مانو, بیٹا کہتا ہے میں نے بوتا. پتا ہے کوئی کسی کو امیر نہیں مانتا. تو اسی لیے اللہ نے گھر چلانے کے لیے اصول دے دیا, مرد امیر ہیں, فائنل بات ان کی مانی جائے گی, ٹھیک ہے, تاکہ گھر چل سکے. فالصالحات, عورتیں وہ ہیں جو نیکوکار ہوں, قانتات, فرما بردار ہوں, حافظات, حفاظت کرنے والیاں ہوں, للغیب, غیب میں, بما حفظ اللہ, جس کی حفاظت اللہ نے حکم دیا. عزتوں کی حفاظت بھی, مال کی حفاظت بھی, بچوں کی حفاظت بھی. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, اگر تمہیں عورتوں سے یہ ڈر ہو کہ وہ بدتمیز ہو جائیں گی, زبان دراز ہو جائیں گی, انہیں سمجھاؤ. فعظوہن, انہیں سمجھاؤ. واہجروہن فی المضاجع, اگر نہ مانے بستر الگ کر لو, پھر بھی نہ مانے وَاضْرِبُوهُنَّ, تو انہیں تھپڑ مار سکتے ہو, انہیں مار لگا سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت پہ کہا ایسی مار نہ ہو کہ نشان پڑے, نہ ایسی مار ہو کہ ہڈی ٹوٹے, اور نہ ہی چہرے پر مارو. اور مزید کہا ایسے مارو جیسے تعدیب کے لیے مارتے ہیں. تعدیب کا مارنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم بچے کو بعض اوقات سزا دیتے ہیں نا, 1-2 لگاتے ہیں, تو اس طرح کا مارنا جائز. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو ان پر ظلم کرنے کا رستہ تلاش نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, اللہ بڑا ہے, بلند ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر تمہیں ان دونوں میں اختلاف کا ڈر ہو, میاں بیوی میں جھگڑوں کا ڈر ہو, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, تو ایک حکم قائم کرو مرد کے گھر سے, وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, اور ایک عورت کے گھر سے. یعنی میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں, باز نہیں آتے, تو پھر دونوں کے گھر سے ایک بندہ بٹھاؤ اور ڈسکس کرو کہ کیا کرنا ہے. اب پھر فیصلہ ہو سکتا ہے, طلاق کا بھی ہو سکتا ہے, چانس دینے کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا لڑائی کی نوعیت کیا ہے.
इन युरीदा इस्लाहन, अगर वो इरादा करे इस्लाह का, युवफ़िक़ल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह उनके दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा, अल्लाह इल्म वाला है, बाखबर है। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, वला तुशरिकू बिही शैयन, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैनी इहसानन, एहसान करो माँ बाप के साथ, वबिज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मसाकीनी, मिस्कीन के साथ, वल जारी ज़िल कुर्बा, उन रिश्तेदारों के साथ, उन हमसायों के साथ जो रिश्तेदार हो, वल जारिल जुनूबी, और वो हमसाए भी तुम्हारे एहसान के मुस्तहिक है जिनको तुम नहीं जानते, अजनबी हैं। वस्साहिबी बिल जंबी, तुम्हारे साथ बैठे हुए लोग, ये जो कुर्सियों पर आप आकर साथ बैठते हैं उसका भी हक है। वब्नि सबील, और मुसाफिरों का भी हक है। वमा मलकत ऐमानुकुम, हक है तुम पर गुलामों का, बस एक हक नहीं है तो सास ससुर करना है ना। मुसाफिर का हक है भाई, गुलाम का हक है, तो सास ससुर का हक कैसे नहीं है? मुझे पता है रंज किस बात का आता है, इस बात का आता है कि हम अल्लाह के दीन को मजाक बना लेते हैं। रंज इस बात का आता है, खुद हर बहू चाहती है कि सास अपना पूरा घर हवाले कर दे, बेटा तो वो देती है, अपना घर भी देती है, शेयर करती है ना। सारे आज का हमारे 99% बच्चे माँ बाप के घरों में बीवियां ब्याह कर लाते हैं, अपनी तो उनकी हैसियत नहीं होती। अच्छा, उनका किचन शेयर करते हैं, उनके पे किए हुए बिजली के बिल से बिजली इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अपनी बारी उनको याद आ जाता है कि हक नहीं है। तो फिर याद रखें, हकूक़ व फ़राइज़ का खेल खेलना है तो सास ससुर का कोई जिम्मा नहीं है, बहू को केटर करना सिर्फ और सिर्फ शोहर का जिम्मा है। जो शोहर की औकात होगी वो बीवी की औकात होगी। जाए जरा फिर रहकर देखिए दुनिया कितनी जालिम है। ये तो माँ बाप की छतर छाया है जिसमें आराम से बैठ जाते हैं आकर, और फिर ऊपर से रोब भी दिखाते हैं। जाए जरा रहकर देखें, किराए के घरों में रहें, आपको पता चले। आप फर्श धोएं तो मालिक मकान लड़ने आ जाते हैं, आप मसाला पीसे मालिक मकान लड़ने आ जाते हैं। ये हौसले सिर्फ सासों के होते हैं जो अपना पूरा घर शेयर कर देती है, जैसे चाहो हो, जो चाहे हो, तो कदर करेंगे। और एक बार ये सोचे कहने से पहले, यही डायलॉग जब आपकी भाभी आपसे कहेगी तो कितनी खुशी होगी आपको कि तुम्हारे भाई का जिम्मा है तुम्हारी माँ की खिदमत करना, मेरा नहीं है। उस वक्त को अज्यूम करें एक दफा, फिर आपको पता चलेगा कितनी तकलीफ होती है जब बूढ़ी माँ बूढ़े बाप को कोई रोटी नहीं देता ये कहकर के मेरा जिम्मा नहीं है। ये अल्लाह ने सिस्टम बनाया हुआ। मैं अपने सास ससुर को देख रही हूँ, मेरी भाभी मेरे माँ बाप को देख रही है, उनकी भाभी उनके माँ बाप को देख रही है, क्योंकि हम सब फासले पर है, ठीक है ना। वो दाता दरबार रोड से उठकर रोज यहाँ आकर जो है, जो मेरी नंद है वो रहती है वलेंशिया, वो वलेंशिया से रोज यहाँ आकर अपने बाप को नहीं देख सकती। मैं यहाँ से रोज दाता दरबार रोड जाकर अपने माँ बाप को नहीं देख सकती। खैर मेरे माँ बाप तो हयात ही नहीं है, लेकिन होते तो नहीं देख सकती थी। मेरी भाभी के जो वालिदैन है वो आगे पिंडी रहते हैं, वो रोज पिंडी जाकर अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकती, तो अल्लाह ने कहा रिप्लेसमेंट कर लूं। मेरी नंद अपने सास ससुर को देखती है, मैं अपनी नंद के माँ बाप को देखती हूँ, मेरी भाभी मेरे माँ बाप को देखती है, उनकी भाभी उनके माँ बाप को देखती है, और सिलसिला चालू। तो लिहाजा अल्लाह की आसानियां कबूल करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, और बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता शेखी खोर और मुतकब्बरों को। शेखी खोरे समझते हैं ना, शोखियां मारने वाले। अल्लज़ीना यबखलूना, वो लोग जो बुखल करते हैं, वयामुरूना अन्नास बिल बुखल, लोगों को भी कहते हैं पैसा बचा बचा के रखो। वयक्तुमूना मा हुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को छुपा छुपा कर रखते हैं। वअअतदना लिल काफिरीना अज़ाब मुहीना, ऐसे लोगों के लिए हमने रुस्वा कुन अज़ाब तैयार कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बखील वो है जो माल न दीन में खर्च करे न दुनिया में खर्च करे। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआ अन्नासी, और वो लोग जब माल खर्च करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, ना उनका ईमान अल्लाह पर है ना आखिरत पर। बखील अव्वल तो माल खर्च नहीं करता ना, और अगर करता है तो कब करता है, जब लोगों को दिखाना होता है। वमन यकुनिश शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना, ये वो लोग हैं जिनका साथी बन गया शैतान, और शैतान बदतरीन साथी है। वमाज़ा अलैहिम, क्या है तुम्हें, क्या है इन लोगों को, लौ आमानु बिल्लाहि, अगर वो ईमान लाते अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर, क्या बिगड़ता है इनका अगर ये अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान ले आते। वानफक़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, और अल्लाह के रिज़्क़ में से खर्च करते। वकान अल्लाहु बिही अलीमा, बिहिम अलीमा, तो अल्लाह उनको खूब जानता है। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन, उन पर ज़रा
बराबर जुल्म नहीं करेगा अल्लाह। वाइन तकू हसनतन युदाइफहा, एक नेकी करेंगे अल्लाह उसे बढ़ा देगा। वयुती मिन लदुन्हु अजरन अजीमा, और उन्हें अपनी जानिब से अजर अजीम भी अता करेगा। फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इनका क्या हाल होगा जब क़यामत के दिन हम हर उम्मत में से नबी को उन पर बतौर गवाह खड़ा करेंगे। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और सारी उम्मतों पर हम आपको बतौर गवाह लेकर आएंगे। यौमइज़िन यवद्दुल लज़ीना कफरू, ये वो दिन होगा जब चाहेंगे काफिर व असव रसूल, और रसूल के नाफरमान, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द, कि वो जमीन फटे उसमें समा जाएं। यानी इतने शर्मिंदा हो गए, हम कहते हैं ना मुझे इतनी शर्म आई कि दिल चाहे जमीन फटे में समा जाऊं, ये कहने की बात है। क़यामत के दिन सचमुच ही चाहेंगे। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, वो अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं पाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबुस सलाता, नमाज के पास मत जाओ, व अंतुम सुकारा, जबकि तुम नशे में हो, हत्ता तालमू मा ला तक़ूलूना, जब तक तुम अपनी कही हुई बात को समझने के लायक ना हो जाओ। वला जुनूबन, और ना हालत जनाबत में नमाज पढ़ो, इल्ला आबिरी सबील, मगर ये कि तुम्हें कोई काम हो, तुम गुजरने वाले हो, हत्ता तग़तसिलू, जब तक गुस्ल ना कर लो। यानी अल्लाह ने कहा मस्जिद में मत जाओ हालत जनाबत में नमाज पढ़ने के लिए, मगर ये कि तुम्हें कोई काम हो। अब आबरी सबील को लेकर ये बहस बनाई जाती है कि हाइजा औरतें जुनब लोग मस्जिद में नहीं आ सकते, मगर हम हदीसों में ऐसा नहीं पाते। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कहते हैं, दोनों की एक ही बात है कि हम लोग नौजवान थे, शादियां नहीं हुई थी, हम मस्जिद में जाकर सो जाते और हमें एहतलाम हो जाता, मगर हम सोए रहते, और जब नमाज का वक्त होता हम उठ के गुस्ल कर लेते। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि नमाज जुम्मा और नमाज ईदैन के लिए औरतें आए अगरचे हाइजा हूं, कहा आती थी, बैठती थी मस्जिद में, और जब खुतबा होता तो मिलजुल जाती, नमाज होती तो अलग हो जाती। अब उस पर कहते हैं ईदैन के लिए तो ईदगाह में आती थी, तो ईदगाह क्या मस्जिद नहीं है? जो ईदगाह का मैदान होता है वो नमाज के लिए खास होता है ना, ये क्रिकेट ग्राउंड में पढ़ते हैं नहीं, ईदगाह में पढ़ते हैं, वो भी तो मस्जिद है। तो कोई पाबंदी नहीं है जी, कोई पाबंदी नहीं है, बेकार बात है। और नबी अकरम वसल्लम ने मंगल का दिन औरतों के लिए खास किया था, तो हाइजा गैर हाइजा सब औरतें आती थी और वहां पढ़ती थी। तो जब नमाज का वक्त होता था तो क्या करती थी? साइज पर हो जाती थी। आपने तो कभी नहीं कहा कि सिर्फ मंगल के दिन वो औरतें आए जो पाक हो, हाइजा औरतें ना आए, कभी कहा नहीं कहा। तो फिर अब क्यों बहस करते हैं? ठीक है, लिहाजा अहले हदीस उलमा का एक ग्रोह इस बात पे शिद्दत करता है, हरम में भी बाज मुतव्विर रोकने होते हैं, नहीं कोई पाबंदी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ अच्छा, एक और दिलचस्प बात भी है, अम्मा आयशा ने कहा कि हाइजा औरतें जब मस्जिद में आएं तो ख्याल रखें कि सफ़े खराब ना हो, और मैंने अंसार की औरतों को से समझदार औरतें नहीं पाई, वो अपने साथ रुई की गद्दियां ले आती, वो आप वो बताते हैं ना बच्चों के लिए, क्या कहते हैं उसको, बिछोनी, बिछोनी, बिछोनी आमतौर पर बिछोनियां बना लेती थी, तो उन्होंने कहा वो रुई की गद्दियां ले आती, बिछोनियां ले आती जिन्हें नीचे बिछा लेती। तो अगर हाइजा औरत आ ही नहीं सकती तो फिर ये बहस ही क्या है ना? क्योंकि अब तो ये आर्टिफिशियल है ना, पहले खजूर की चिटाइयां होती थी तो उस पर से दाग नहीं उतरता था, धो भी दो ना दाग नहीं जाता, बुरा लगता था। तो इसलिए अम्मा आयशा ने कहा कि हमें ये बात सिखाई गई कि जब हम मस्जिद में बैठे तो हैज़ के खून से मस्जिद की सफ़े खराब न हो। तो हमने देखा कि बाज़ औरतें ज़मीन पर बैठ जाती हैं, क्योंकि उस जमाने में पैड तो होते नहीं थे, अब तो बड़ी सेफ्टी हो गई है, तो जो कपड़े से आपको पता कुछ ना कुछ दाग लग ही जाता। तो इसलिए आपने कहा मैंने देखा कि बाज़ औरतें तो ज़मीन पर बैठती हैं, या मिट्टी पर बैठती, और अंसार की औरतें बड़ी समझदार थी, अल्लाह उनको बरकत है, वो अपने साथ रुई की गद्दियां बना के ले आती, बिछोनियां ले आती, वो नीचे रख के बैठ जाती। तो अगर हैज में आ ही नहीं सकते तो बहस ही नहीं है ना। सो ये सारी बेकार की बात है। हाँ, नमाज नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, इस पर एक और हदीस भी सुना देती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को भेजा एक अंसारी सहाबी को बुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा आप चले, मैं आ गया। तो थोड़ी देर में वो आए तो बाल लो से पानी टपक रहा, सांस चढ़ा हुआ, दौड़ दौड़ कर आए। तो आपने कहा क्या हुआ? वो कहने लगे जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जुनब था तो नहाया, और मैंने कहा कि देर ना हो जाए, आप नाराज हो, तो मैं दौड़ा आया। आपने कहा जरूरत ही नहीं थी, मैंने नमाज के लिए थोड़ी बुलाया था, मुझे तो आपसे काम था, बैठे आप मस्जिद में हुए थे, है ना? तो बात तो यहाँ जुनब की हो रही है। अल्लाह कहते हैं जब तुम जुनब हो तो मस्जिद में नमाज पढ़ने मत आओ, मगर ये कि आबरी सबील, गुजर रहे हो। अब यहाँ से उन्होंने लफ्ज पकड़ लिया, गुजर रहे हो, गुजर सकते हो, मस्जिद में बैठ नहीं सकते। जुनब भी और हाइजा भी, जुनब का हुक्म हाइजा पर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जुनब आया मस्जिद में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप आ सकते थे, नमाज के लिए तो मैंने बुलाया ही था, मुझे तो काम था। तो आबरी सबील से मतलब ये नहीं है कि खाली गुजरना हो, आबरी सबील से मतलब है तुम किसी काम के लिए आओ, और जैसा कि मैंने भी बताया बैठ भी सकते बिल्कुल। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके इल्म को हम सब जानते हैं,
ان کا یہ بیان ہے کہ میں نوجوان تھا اور ہم اور بھی نوجوان تھے اور ہماری شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی تو ہم مسجد میں سو جاتے اور میرے اندر بہت قوت تھی تو جو ہے وہ ہو جاتا احتلام ہو جاتا تو میں سویا رہتا تو جب اذان کا وقت ہوتا تو میں اٹھ کے غسل کر کے نماز پڑھ لیتا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ خالی گزر سکتے بیٹھ نہیں سکتے, وہ تو سوئے رہتے. تو یہ بیکار بات تھی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اگر تم بیمار ہو او علی سفر مسافر ہو او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی آیا ہو رفع حاجت کر کے او لمستم النساء یا کسی نے عورتوں کو ٹچ کیا ہو. اب یہاں بھی معنی لے لے کہ جس نے ہاتھ لگا لیا وہ جنب ہو گیا. لفظ کا معنی نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کیا. آپ کو پتا ہے خالی کسی وغیرہ سے بھی ناپاکی لاحق نہیں ہوتی, صرف فزیکل ریلیشن سے ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا پردے کا انداز ہے, بات کو بیان کرنے کے محاورے ہیں. فلم تجدوا ماء ان سے پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا وہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرے. آپ ہاتھ ماریں گے مٹی پر, ہاتھوں کو آپس میں جھاڑیں گے, چہرے پر پھیریں گے, ایک دائیں ہاتھ پہ پھیرا کونی سمیت بائیں ہاتھ پہ پھیرا کونی سمیت, مسح ہو گیا, تیمم ہو گیا الحمدللہ. اور کچھ نہیں کرنا. اور پاک مٹی کون سی ہے؟ ہر مٹی پاک ہے جب تک اس میں سے کوئی اسمیل نہ آ رہی ہو یا پوٹی گند پڑا ہوا نہ دیکھ لے. بعض اوقات ہوتا ہے نا بلی جانور وغیرہ پوٹی کر جاتے تو پھر وہ نہ پاک ہے, ورنہ ہر مٹی پاک ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا اللہ بخش دیتا ہے مہربان ہے. الم تر الی الذین تم نے ان لوگوں کا حال دیکھا اوتوا نصیبا من الکتاب جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا یعنی کہ یہود. یشترون الضلالۃ وہ خریدتے ہیں گمراہی, ویریدون ان تضلوا السبیل اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے گمراہ کر دیں. تیمم کا حکم آیا نا تو باتیں بنانے لگے, حالانکہ تیمم تو توریت میں بھی بیان ہوا ہے. تو اللہ نے کہا خود تو گمراہ ہوئے ہیں تمہیں بھی کرنا چاہتے ہیں. واللہ اعلم باعدائکم اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے. وکفی باللہ ولیا اللہ کافی ہے سرپرستی کے لیے. وکفی باللہ نصیرا اللہ کافی ہے تمہاری مدد کے لیے. من الذین ہادوا وہ جو یہودی بنے بیٹھے ہیں, یحرفون الکلم عن مواضعہ ان کا حال یہ ہے کہ توریت کے کلمات کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں. ویقولون سمیعنا وعصینا منہ سے کہتے ہیں ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کی. واسمع غیر مسمع کہتے ہیں سن اور نہ سنائے جاؤ تم کسی کو. ورائنا اور رائنا کہتے ہیں لیم بالسنتہم اپنی زبانوں کو موڑ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے جب آپ کوئی بات کہتے کوئی حکم دیتے تو صحابہ کہتے سمیعنا واطعنا اللہ کے نبی ہم نے سنا ہم مان گئے. یہ بدبخت کیا کہتے منافق تھے نا محفل میں بیٹھے ہوتے سمیعنا اونچی ساری کہتے اور زیر لب کہتے سوئینا ہم نے نہیں مانا. اور کوئی بات آپ کرتے نا تو بیچ میں کوئی بات کرنے لگ جاتا ہے جیسے بھی یہ آپس میں بات کر رہے ہیں تو روکنا ہے تو اس کے لیے عرب کا محاورہ ہے واسمع چپ کر کے سنو. ٹھیک ہے تو کوئی ہلکی سی بات بھی صحابہ تو بہت ادب کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم ایسے بیٹھتے محفل میں جیسے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہیں ہلے تو اڑ جائیں گی. مگر کسی وقت کوئی بچہ رو پڑتا کوئی آپس میں ضروری بات ہی کر بیٹھتے تو فوراً بولتے واسمع چپ کر کے سنو اور زیر لب کہتے غیر مسمعین بد دعا ہے یہ تمہاری بات کوئی نہ سنو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمہیں کوئی رونے کے لیے نہ ملے معاذ اللہ بد دعا ہے کہ تم بات کرو کوئی تمہاری بات نہ سنے تو آپ کو بد دعا دیتے معاذ اللہ. منہ سے کہتے ہیں واسمع بہانے اور زیر لب کہتے غیر مسمعین تمہاری بات سننے والا کوئی نہ ہو اکیلے رہ جاؤ معاذ اللہ. اور رائنا کا تو آپ بقرہ میں پڑھ ہی آئیں گے. اب نبی اللہ نے کہتے ہیں انظرنا کہو پھر بھی رائنا کہتے جان بوجھ کے اور ایسا بار بار کرتے اور ہنستے کس بات پر معاذ اللہ. یہ کہتا ہے میں نبی ہوں جبرائیل وحی لاتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا پتہ سب چلتا. اللہ نے ان کے لیے سزا یہ رکھی کہ یہ اسی مغالطے میں رہیں کہ ہمارا حال کھلا ہوا نہیں. وَتَعْنًا فِي الدِّينِ دین میں تانا بازی کرتے ہیں یعنی اور تو کچھ کر نہیں سکتے بیٹھ کر کھپتیاں کستے ہیں جاہلوں والی حرکتیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کاش یہ کہتے ہم نے سنا ہم نے مانا. وَاسْمَعْ دل سے کہتے توجہ سے بات سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَانظُرْنَا اور وَانظُرْنَا کہتے بوقت ضرورت. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ان کے حق میں اچھا تھا. وَأَقْوَمَ زیادہ درست تھا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ پر اللہ نے لعنت کر دی ان پر ان کے کفر کے باعث. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے بہت. یا ایھا الذین اے او لوگو اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے آمنو ایمان لاؤ بما نزلنا اس کتاب پر جو ہم نے اتاری مصدقا لما معکم تصدیق کرتی ہے تمہارے پاس موجود کتاب کی من قبل پہلے سے یعنی توریت
आयत की तस्दीक करता है कुरान, नतमिसा वजूहन, इससे पहले कि हम चेहरे मिटा डालें। कयामत का दिन, चेहरे मिटाने से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे कौम लूत उठाई जाएगी तो उसकी आंखें ही नहीं होंगी, पूरी कौम की। वो कहेंगे अल्लाह हमारी आंखें क्यों नहीं है? अल्लाह कहेंगे दुनिया में तुम्हें मेरा दीन नजर नहीं ना आया, अब तुम आंखों के लायक नहीं, अब इसी हाल में उठाए जाओ। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। फनरुद्दहा अला अदबारिहा, और हम चेहरों को कमरों की तरफ फेर दे, यानी कई गिरोह ऐसे उठाए जाएंगे जिनके मुंह उनकी बैक की तरफ हो। क्यों? सारी उम्र तुम हक से मुंह फेरे रहे, अब हमने तुम्हारा मुंह ही फेर दिया, जाओ। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। औ नलअनहुम कमा लअन्ना असहाबस सब्त, या हम तुम पर वैसी लानत करें जैसे असहाबुस सब्त पर की, बंदर बना दे। अब दुनिया में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है ना, हजरत काब की हदीस है कि मेरे साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए और हम बाग में पहुंचे अंसार के, वहां आपने इतना लंबा सजदा किया कि मुझे लगा आप मर गए। फिर आपने जब सर उठाया तो मैंने कहा इतना लंबा सजदा किया आपने, मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो आपने कहा मैंने 3 दुआएं की अल्लाह से, 2 अल्लाह ने मान ली, 1 रद्द कर दी। एक दुआ ये कबूल मैंने की कि अल्लाह मेरी उम्मत पर शक्ल बिगड़ने का अजाब ना आए दुनिया में, और अल्लाह ने इसे कबूल कर दिया। दूसरी दुआ की मेरी कौम पर जमीन में धसाए जाने का अजाब ना आए, अल्लाह ने ये भी मान लिया। और तीसरी मैंने कहा मेरी उम्मत में गिरोह ना बने, तो वो नहीं मानेगा। तो इससे ये भी साबित होता है कि आप नमाज ना पढ़ सके इसी वक्त तो खाली सजदा करके भी दुआ कर सकते। खैर, नबी अकरम सल्लल्लाहु की दुआ की बरकत है, दुनिया में तो सजाएं नहीं है, मगर आखिरत में अल्लाह माफ करे कई गिरोह खिंजीर की शक्ल में उठेंगे, कई बंदरों की शक्ल में उठेंगे, कई चूहों की शक्ल में उठेंगे, ये होना जैसे मुतकब्बरीन चूंटियों की शक्ल में उठेंगे। तो हम अल्लाह से पनाह तलब करते हैं, अल्लाह रब्बे करीम हमें अस्हाबुल यमीन में शामिल करे, आमीन। वकान अम्रुल्लाहि मफूला, ये अल्लाह का हुक्म है जो वाक़ई होकर रहेगा। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही, अल्लाह माफ नहीं करेगा उसे जो शिर्क करे अल्लाह के साथ। व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ, इसके सिवा जिसके लिए जो चाहे बख्श दे। शरीक बनाए हरगिज़ मत अल्लाह के साथ। वमन युश्रिक बिल्लाही, जिसने अल्लाह का शरीक बनाया, फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया और घड़ कर किया अपनी तरफ से। अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, तुमने उन लोगों के हाल पर गौर किया जो अपनी पाकी बयान करते हैं, यानी बैठते हैं तो कहते हैं मैं तेरी नमाज पढ़नी है, मैं तेंज कर दिया, मैं तेरे तक झूठी नहीं बोले वगैरह, लोग करते हैं ना बातें। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाउ, पाक वही है जिसे अल्लाह पाक कर दे, यानी कि तकवा तज़किया अल्लाह अता करते हैं। वला युज़लमूना फतीला, और वो जुल्म ना किए जाएंगे धागा बराबर। ज्यादातर दावे करने वाले झूठे होते हैं, तो अल्लाह कहते हैं तुमने देखा जो बड़े बड़े पाकी के दावे करते हैं, फ्रॉडी हैं सारे। पाक वो है जिसे अल्लाह पाक करते हैं। उन्जुर कैफ़ यफ़्तरून अलल्लाहि कज़िबा, देखो तो कैसा झूठ करते हैं ये अल्लाह पर। वकफा बिही इस्म मुबीना, और अल्लाह उनके इन खुले गुनाहों का बदला देने के लिए काफी है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके इन खुले गुनाह का, अल्लाह के साथ शिर्क का और अल्लाह के इनकार का बदला जो देगा वो काफी होगा, और वो तुम लोग देख वक्त आपका आज का खत्म हुआ, लिहाजा बात को यही खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका कोई सवाल हो तो वो पूछ ले। तो हमने कहा था कि जायदाद में अगर बेटा मर जाए पहले और बाप बाद में मरे तो उसके हिस्सा नहीं होगा जायदाद, तो फिर क्या करेगा उसका, फिर किस तरह आगे अपनी तो ये पता कि मेरा इसमें हिस्सा है। देखिए, पता होने में और कानून में फर्क है ना। कानून ये है कि अगर बाप की जिंदगी में औलाद मर जाए तो उसकी औलाद यानी पोते वारिस नहीं होंगे, ठीक है। अब अल्लाह ने 7 ऑप्शंस भी तो दिए हैं, 2 ऑप्शन है। एक है गिफ्ट, गिफ्ट कर दो अपनी जिंदगी में, दादा अपनी जिंदगी में पोते को गिफ्ट कर दे कुछ, ठीक है। और दूसरा है वसीयत, 1/3 की वसीयत हो सकती है ना, तो पोते के लिए वसीयत करके जाए, वारिस नहीं है ना। लेकिन 2 अल्लाह ने ऑप्शंस रख दी, 1/3 तक की वसीयत कर सकते और दूसरा गिफ्ट कर सकते हो अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो उनमें से एक ऑप्शन को इस्तेमाल आप समझते नहीं है ना। देखें जी, 4 बेटे हैं, अब बाप की जिंदगी में अगर किसी की शादी सही, जैसे मेरे बेटे अहमद ज़िया हैं, अली ज़ैन है, उनकी शादी मैंने 22 साल की उम्र में कर दी। जब ये लोग 44-45 साल के होंगे, इनके बच्चे जवान होंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी। जब ये लोग होंगे ना 50, 55, 60 साल के, इनके बच्चों के बच्चे हो गए होंगे। अब अगर वो सारे वारिस हों तो सबके हिस्से में क्या आएगा? 6 कट्टा। इसलिए अल्लाह ने कहा
औलादों ने अपने बाप का वारिस बनना है, दादा का वारिस नहीं बनना। दादा के वारिस सिर्फ बेटे बनेंगे ताकि कोई अमाउंट तो हाथ में आए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो बच्चा मर गया या बेटी मर गई उसके बच्चे वारिस नहीं हो सकते। अब अगर आपको दिक्कत नजर आ रही है कि भाई गरीब हैं, उनको जरूरत है, तो दो ऑप्शंस है, अपनी जिंदगी में गिफ्ट कर दो या फिर उनके लिए वसीयत करके जाओ। 1/3 तक की हल है, ठीक है। इस लॉ के पीछे बड़ी हिकमत है। आप देखें ना, जैसे मेरे बच्चे 3 हैं और इस वक्त मेरे पोते पोते नवासे नवासियां 9 हैं। अब मेरे मियाँ का एक घर है बस, और क्या है। अब वो घर 3 में तकसीम होगा तो सबके कुछ ना कुछ हिस्से आ जाएगा, लेकिन अब वो 3 माशाल्लाह खुद और आगे 9 12 में तकसीम होगा। अभी 12 हैं, अल्लाह को पता है मेरे एक बेटे का सिर्फ एक बेटा है, अल्लाह को पता है और कितने आने हैं। तो अभी की जो सिचुएशन है वही घर 3 की बजाय 12 में तकसीम होगा तो क्या हाथ आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये अल्लाह की हिकमतें हैं। अब उसके बाद अल्लाह को पता है मेरे मियाँ की जिंदगी कितनी है। मेरी बेटी का इरादा ये है कि मैं अपनी बच्ची को 20-22 साल में ब्याह दूंगी। इस वक्त वो 16 साल की हो चुकी है। अब अगर अल्लाह फजल करते हैं और उसकी शादी हो जाती है, जैसे मेरे ससुर जो थे उन्होंने अपनी 4 नस्लें देखी, अपने पोते पोतियों के बच्चे भी देखे। अगर मेरे मियाँ भी तवीलुल उम्र होते हैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह करे हो, और वो अपने नवासी के बच्चे देखते हैं, तो मुझे बताएं औलादों के हाथ हिस्से क्या होना है फिर। तो ये अल्लाह की बड़ी हिकमत है। इसीलिए अल्लाह ने कहा अपनी औलाद वारिस है अपने माँ बाप की, तुम्हारी औलाद तुम्हारी वारिस होगी, दादा दादी की वारिस नहीं होगी। वसीयत कर दी ना उनके लिए। बिल्कुल वसीयत कर दी। तो अल्लाह ने हल रखा है ना, वसीयत कर दे या फिर गिफ्ट कर दे, दोनों तरीके सही है। माँ बाप की खिदमत से वरासत में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नकम्मा हो, नकारा हो, शराबी हो, आवारा हो, वरासत वरासत। आप सारा कुछ वरासत को ना माने, आखिरत भी तो है। माँ बाप की खिदमत का फरमा बरदारी और नाफरमानी का वरासत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर एक नाफरमान औलाद को माँ बाप आंख भी कर दे, वो आंख नहीं होगी, वरासत दी जाएगी। सिर्फ एक सूरत आंख करवाती है, क्या है जी वो? माँ बाप के हक के वरासत से महरूमी का सबब सिर्फ एक सूरत है, वो क्या है? पढ़ नहीं रहे, इर्तदाद करना, मुर्तद हो जाना। अगर किसी ने दीन बदल लिया तो मुस्लिम माँ बाप का वारिस नहीं होगा। और दूसरी जो आप कह रहे हैं वो भी है, मगर पढ़ना नहीं। जो जाकर गैर मुस्लिम मुल्क में सेटल हो गया, उसने, यानी आपका बेटा है, उसने शहरियत के लिए ऑस्ट्रेलिया की और वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया, आपकी वरासत उसे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? तो वो आप गलती करते हैं और वो भी गलती करते हैं, क्यों नहीं जाएगी? पाकिस्तान में रहकर सब कुछ बनाया, पाकिस्तान ने दिया, चुपके थे लहजे ऑस्ट्रेलिया। पहले ही पाकिस्तान का अलमिया क्या है, सारी पाकिस्तान की दौलत स्विस बैंक में पड़ी, और एक पाकिस्तान की क्या, सारे मुस्लिम ममालिक की दौलत लूट लूट कर स्विस बैंक में रखी है। खुद मर गए, स्विट्जरलैंड हमारे पैसों पर ऐश कर रहा, और हम सारे रो रहे हैं। तो इसलिए ये भी उसूल है, ये वाकई उसूल है, ये हम तौबा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसीलन। जो बच्चे जाकर गैर मुस्लिम ममालिक में सेटल हो जाते हैं उनकी वरासत खत्म हो जाती है, मिलनी नहीं चाहिए, उनको वरासत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन वो अलग बात है कि ये मनवाएगा कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो बैठे ना सारे वहीं पर, देखें जी, जब रहना वहां पर है तो वहां पर कमाएं। जो पाकिस्तान की दौलत है वो क्यों बाहर जाए? आप सही फरमा रही हैं, हर घर में 1-2 फैमिलीज ऐसी। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये जाना भी पसंदीदा नहीं है और जाने के बाद के कवानीन भी सख्त। जी, और कोई बात?
کہ 10 سال سے روزہ نہیں ہوگا مجھے کا 10 سال سے روزے نہیں رکھی ہے اور آپ انہیں دیا دینا چاہتی ہے تو کیا مجلسے کو دے سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ 10 سال سے روزے رکھے کیوں نہیں؟ وہ پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیے لیکن آپ توبہ کرنا چاہیے. جی ضرور توبہ کریں, بالکل دے سکتے ہیں جی, وہ راشن میں ڈال دیں گے, ڈال دے سکتی ہیں جی. نہیں, زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہے, حق مہر کا انحصار ہے شوہر کی مالی حیثیت پر. اگر ایک بندہ کلرک ہے تو آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ 20,000 30,000 5,000 بات اگلے کی حیثیت پر اور آپ دونوں کی رضامندی پر. اگر عورت کہتی ہے مجھے 1000 مہر بھی منظور ہے تو ٹھیک ہے, یہ عورت کی رضا پر ہے اور مرد کی مالی حیثیت پر. اب ظاہری بات ہے ایک بندہ کارخانے دار ہے تو وہ 2-4 لاکھ تو لکھ کر دے گا. تو دو چیزیں ہیں اس میں, عورت کی کنسیڈریشن یعنی مرضی اور مرد کا مالی حیثیت. فریم کرا کے لگا لیں. نہیں میں نے کہا نا فریم کروا کے دیوار پہ لگا لیں. دیکھیں جی, مہر کا پیسہ عورت کا پیسہ ہے, وہ جو چاہے کرے. اور اگر کوئی بڑی رقم ہو تو چلے مشورہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ضائع نہ کرنا, کسی وقت کام آ جائے گا. تو جیسے تھوڑا مہر رکھا گیا 5-10 ہزار, ایون 20,000,